Okay, I think Jyoti ji, are you there with us? Okay, to all the new joinees, once again, welcome you for the second session of the training session, come workshop for your show Mahakumbh Yatra. And I would like to request the technical team, please play the Saraswati Vandana. I think Jyoti ji is there and Krishna ji is there. या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतं शङ्करं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा Thank you so much, Medha ji. And as we all know, in the times of the digital era, digitization of historic, rare, and grand events like Mahakumbh is very important because it preserves the valuable information for the generations to come. To guide you with this digital documentation journey, today we have with us our eminent speakers, Ms. Prerna Bharadwaj ji and Mr. Priyank Dev ji. I, on the behalf of Shodh team, would like to welcome esteemed guests and interns to join us in this insightful session. A very warm welcome to you all. Firstly, I would request Kartik ji from Punjab University, Chandigarh. He's a PhD scholar in Lok Prashashan Vibhag and he is Prant Sanyojak of Punjab Prant. Kartik ji. सबको नमस्कार. I'm audible. Yes, yes. Okay. Thank you, Hemal ji, for the introduction. So I welcome everyone in the second session of this show internship. So as far as my duty, I have to give introduction about the show. So show, as it stands for Students for Holistic Development of Humanity, is an effort to start a dialogue amongst the research community of India and to bring researchers from diverse disciplines on one registered organization under the Companies Act of 2013, which works for inculcation of a richer research culture in India, as it has foothold in more than 20 states in India. We always strive for building an intellectual bridge between real needs of Indian society and the research areas pursued in Indian higher education institutions. It provides the opportunity to take a multidisciplinary and holistic approach to research for the development of society. A dynamic and innovative research scholar community will turn problems into opportunity for national transformation. It will utilize these opportunities as well as the individual efforts of researchers and academicians for a seamless exchange of ideas. This will create an environment for an interdisciplinary approach in research by thinking and innovating at the grassroots level. Under the initiatives, scholars would be encouraged to conduct research and present findings away from the biases based on scientific methods and research ethics. Shodh has organized a number of
academic events such as symposiums, talks, conferences, panel discussions, international seminars, research methodology workshops, internship programs, and various competitions for young research scholars and undergraduate and postgraduate students. The aim of these events has been threefolded. The first is show the aims to inculcate a sense of research aptitude among the younger scholars. Research aptitude is a non-negotiable prerequisite of good research work. We try to infuse research aptitude even among these young scholars who are not yet formally enrolled for research. Secondly, we work towards improvement of research capacity of the current generation of researchers by giving them exposure to genuine methodological training under the tutelage of seasoned academicians from diverse disciplines. Thirdly, we play the role of academic catalyst, bring researchers working in different fields with different outlooks on one common forum to facilitate the exchange of ideas in most constructive manner. Our overall focus is always on linking the academic research with the needs of the society and nation. Thank you very much. Thank you so much, Karthik ji, for that brief introduction of Shodh, Students for Holistic Development for Humanity Foundation, and its importance in national rebuilding. Now, moving ahead, it's my honor to welcome and introduce our first speaker for the session, Ms. Prerna Bharadwaj ji. She's a PhD scholar, a social media strategist who has her expertise in political science and digital media. She's national social media convener in ABVP. And one note to the participants that I would like to give, that Q&A session will be taken at the end when both the speakers have done their session. So please note down your questions for the end. And welcome, Prerna ji. Thank you, Himalji. A very good afternoon to everybody. Namaste sabhi ko. We'll start the session by discussing a few things. तो सबसे पहले जब भी हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, it's very important to do some sort of research. And since we are talking about शोध internship only, तो यहाँ पे सबसे बड़ा काम इज रिसर्च. और जब हम लोग सोशल मीडिया का भी कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी क्रिएट अ पोस्ट और वी गो फॉर अ रील, तो उससे पीछे हमें थोड़ी सी रिसर्च लगती है. तो अभी जैसे कि आप लोग शोध की तरफ से कुंभ की इंटर्नशिप के लिए भी जाओगे, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो यू हैव टू रीड अबाउट एवरीथिंग कि कहाँ क्या चीज है. यू शुड हैव अ मैप कि कैसे कैसे कहाँ पे कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, सो दैट यू नो अबाउट एवरीथिंग व्हेन यू गो देयर टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. उसके बाद आप लोग सबसे पहले प्लान करो कि हम किस किस थीम पे अपना एकदम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू कैन डॉक्यूमेंट एवरीथिंग कि रिचुअल्स वहाँ क्या क्या चल रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट कैसा है, कौन कौन से अखाड़े आए हुए हैं, विमेन के लिए अलग से क्या व्यवस्था है. तो उसके लिए यू हैव टू डेजिग्नेट अ सेपरेट टीम ऑल्सो. तो जब हम ये सारी चीजें मतलब कि देख लेंगे कि हमें कैसे कैसे कंटेंट कैसा चाहिए. अब कंटेंट हम लोग ऐसे आइडियाज अलग अलग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग कल्चरल हेरिटेज की बात करें, तो हम लोग एक इन्फोग्राफिक्स भी बना सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग वहां पे जाके कैप्चर करके वी कैन क्रिएट अ रील लाइक इन्फोग्राफिक ऑल्सो. अब इसमें जब हम कराउसल वाला इन्फोग्राफिक बनाएंगे तो उसमें यू विल नीड सम रिसर्च. फॉर एग्जांपल आपने अखाड़े के बारे में सोचा कि आप बताओगे, तो उसके बाद वो इन्फोग्राफिक के लिए अ टीम ऑफ पीपल शुड बी डेजिग्नेटेड टू डू सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च. और फिर उसके बाद एक ग्राफिक डिजाइन करके कि ये अखाड़ा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये कब से चलता आ रहा है, इनका रोल क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है. तो दैट कैन बी डन थ्रू शोध. उसके अलावा जैसे कि आप लोग वहाँ फिजिकली जब प्रेजेंट हो गए, तो यू शुड हैव अ टीम ऑफ पीपल, वन पर्सन डेजिग्नेटेड फॉर द फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, देन देयर शुड बी पीपल for video editing, even if they are not there on ground, but they are somewhere sitting back, but constant loop में वो है कि ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके उनके पास जा रही है, तो दे आर गेटिंग इट एंड देन दे आर एडिटिंग इट साइमल्टेनियसली. उसके बाद आपका कैप्शन कौन लिखेगा, रिसर्च कैसे कैसे होगी कैप्शन के पीछे, तो उसके लिए एक सेपरेट टीम बनानी पड़ेगी जब भी हम लोग पूरा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे. अब जैसे कि शोध के लिए अगर मैं स्पेसिफिक आइडियाज दूं कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो, तो आप लोग थीम्स उठाओ.
कि हम लोग सबसे पहले कल्चर पे जाएंगे। तो आप लोग एक बार ना पेज चेक करना, देर इज दिस पेज कॉल्ड पीपल ऑफ इंडिया। तो व्हाट दे डू इज दे डॉक्यूमेंट स्टोरीज की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वहाँ किसी साधु के पास गए हम लोग, और वहाँ उस साधु से हमने पूछा कि कैसी कैसी चीजें हैं, व्हाट ऑल इज हैपनिंग, वो कितने सालों से कुंभ में आ रहे हैं, क्या वो किसी तरह की तपस्या उन्होंने की है। तो उन सबको डॉक्यूमेंट करके, यू कैन टेक बाइट्स ऑल्सो, यू कैन टेक इंटरव्यूज ऑल्सो, एंड देन यू कैन हैव अ कैमरा मैन हु विल शूट ऑल दिस, है ना। नहीं तो दूसरा ऑप्शन होता है कि आप लोगों ने क्या किया, एक कैमरामैन लिया, या फिर आप अगर अपने फोन से भी शूट कर रहे हो, तो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हाउ वी आर शूटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, हम शूट भी कर रहे हैं तो प्रॉपर, अगर हमें रील फॉर्मेट में डालनी है तो हम फोन में भी उसको 9:18 के फ्रेम में ही शूट करें, सो दैट हम जब रील डालें तो वो इधर उधर से कटे ना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने किसी बहुत पुराने अखाड़े का डॉक्यूमेंट करने का सोचा। तो माय फर्स्ट जॉब वुड बी टू सी कि भाई उस मैप में मैं देखूंगी कि कहाँ ये सारे लोग मुझे सबसे ज्यादा मिल जाएंगे, कहाँ पे किस टाइम पे कौन सा स्नान है, फिर किसी शाही स्नान में आई विल ट्राई टू गेट द डॉक्यूमेंट। वहां या तो कैमरा पॉसिबल है तो आई टेक माई कैमरा, और नहीं तो मैं अपने फोन से आई ट्राई टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। वो आपने रिकॉर्ड किया सब कुछ, टेक सम शॉट्स, जैसे कि कुछ वो बोलते हुए उनकी क्लिप्स डाल दी। फिर उसके बाद आपने उनका, जब वो लोग स्नान कर रहे हैं उसका वीडियो बना लिया थोड़ा सा। वहां पे लोग बहुत ज्यादा यूनिसन में अगर हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं, वो आप लोगों ने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया। तो ऐसे करके स्टार्टिंग विद सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, देन डूइंग दिस, एंड ये सारा अगर आप विजुअली रिकॉर्ड भी कर रहे हो तो वॉइस ओवर आप लोग बाद में भी डाल सकते हो, है ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत अच्छी तरह कोई भी एक थीम को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद, ये तो चलो स्नान वाला हो गया। अदर देन दैट हम लोग, जैसे कि वहां पे यज्ञ भी काफी सारे चल रहे हैं ना, वो कर सकते हैं हम लोग। पूजा बहुत सारी चल रही है, तो एक शॉर्ट वीडियो शोध की तरफ से आया है, जैसे आप लोग एक फिनोलॉजी का पेज देखना, उसमें हर चीज को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि वैसा एक प्रॉपर आपने पीछे वो चलाया, या फिर आपने खुद ही, यू टेक योर सेल्फ इन द कैमरा, समबडी फ्रॉम अस, है ना, उन्होंने लेके अपने आप को कैमरा में, देन दे स्पीक अबाउट कि ये चीज है, ये ऐसे होती है। फॉर एग्जांपल, ये पूजा यहाँ क्यों की जाती है, इसका क्या रेलेवेंस है, वहां थोड़ा सा ऑन ग्राउंड दिखा के कैमरामैन के साथ, you are taking bites of people, you are taking bites of some sadhus also, so that also can make it a very impactful video। फिर उसके बाद हम लोग अगर और भी सोचे कि कैसे कैसे चीजें की जा सकती हैं, तो अगर इफ पॉसिबल वी कैन गेट ड्रोन शॉट्स ऑल्सो, बट ट्राई फोकसिंग कि मतलब बिकॉज इट इज शोध का इंटर्नशिप, तो जो हम लोग डॉक्यूमेंट करें उसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस और उसका प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में, तब पुराने से लेकर अब तक का क्या चलता आ रहा है। तो हम ऐसी सीरीज भी शोध से निकाल सकते हैं महाकुंभ के बारे में। अभी एक मैंने देखा था, आई गेस 2-3 घंटे पहले एक वीडियो आया है, एंड somebody has posted this AI generated video कि जो पहला कुंभ हुआ था वो कैसा था। तो ऐसा करके मतलब कि कुंभ देन एंड कुंभ नाउ, इफ यू कैन गेट सम पेंटिंग्स, सम स्केच एकदम पुराने टाइम की, और ये दिखाते हुए कि हमारी साइड से कोई एंकर वहीं पे ऑन ग्राउंड वहां जाके कैमरा पर्सन इज रिकॉर्डिंग कि देखा कि इतने सालों पहले कुंभ ऐसे हुआ करते थे, और आज देखिए कि भारत की भव्य भूमि पे कितने लोग आ रहे हैं। तो बीट यू शो स्टीव जॉब्स की वाइफ, या फिर बाहर के बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज जो महाकुंभ में आ रहे हैं, उनको आप लोग बहुत अच्छी तरह दिखा सकते हो। और अ टीम फ्रॉम शोध कैन गो एंड हैव अ पॉडकास्ट विद देम, हैव एन इंटरव्यू विद देम। तो उसको नॉट जस्ट आप रील फॉर्मेट में, बट यू कैन ऑल्सो अपलोड इट टू योर यूट्यूब चैनल, और आपके इंस्टाग्राम पेज पे भी वो धीरे 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 करके यू कैन पुट इट इन 6 to 7 parts, so you'll have a lot of content from that। ऑल्सो ट्राई गेटिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज, है ना। आजकल के यूथ को क्या चाहिए कि कुछ मसाला चाहिए। तो मतलब जैसे कि या तो वहां पे बहुत बाबा हैं जिन्होंने इतने सालों से ना अपना हाथ ही नीचे नहीं किया है, यू कैन गो टॉक टू हिम, बट द वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड इज कि बी वेरी पोलाइट टू देम whenever you are approaching। अगर मतलब somebody is not okay with giving the interview or is frustrated, तो उसको आप मतलब अवॉइड करो, यू डोंट हैव टू एकदम उनको परेशान नहीं करना है, बट ट्राई टेकिंग द इंटरव्यूज, द बाइट्स पोलाइटली। आप कोशिश करो कि जो मतलब कि बहुत एल्डरली पीपल हैं, जिनका सेकेंड थर्ड फोर्थ कुंभ है ना, उनकी वीडियो ले लो। या फिर जैसे कि
स्पेसिफिकली विमेन जो है या फिर जो फर्स्ट टाइमर्स है, अगर कुछ बच्चे हैं स्कूल गोइंग किड्स एंड देन दे आर कमिंग, तो ऐसे भी आप लोग वीडियोस बना सकते हो कि कल्चर सीज नो एज, ऐसे करके कुछ, है ना। तो क्रिएटिव क्रिएटिव चीजें, द वे यूथ वांट्स टू सी इट। और जब भी कैप्चर करो तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि यू आर कीपिंग योर फोन बहुत स्टेबल तरीके से, है ना। स्टेबलाइज्ड वीडियोस बनाओ। हल्का फुल्का इधर उधर हो भी गया तो जब पोस्ट करो तो तब वीडियो स्टेबलाइजर होता है, तो आप उससे स्टेबल कर सकते हो, है ना। जब भी हम लोग रील्स फॉर्मेट में अपनी वीडियो डालें तो ट्राई राइटिंग समथिंग ऑन द वीडियो, बिकॉज videos with a subtitle written on them would automatically trend more than a simple video। तो वो डालो चीजें, है ना। साथ ही साथ जैसे कि जब आप कैप्शन भी लिख रहे हो या फिर अ, अ, एक आपने वीडियो बनाया वहां पे आप बाइट्स ले रहे हो, तो यू कैन टेक बाइट्स लाइक डिस्क्राइब महाकुंभ इन वन वर्ड। अब उसको थोड़ा 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 करके हिस्ट्री से रिलेट कर दो। बट द मेन पॉइंट ऑफ ऑल दिस शुड बी कि आप थोड़ा बहुत हर चीज का हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी बताओ। जैसे कि अभी का बताया, किसी अखाड़े के पास गए फिर उसका पुराना रेलेवेंस बता दो। फिर कोई यज्ञ के बारे में दिखाया कि आज ही यज्ञ यज्ञ हो रहा है, फिर उसमें इसमें थोड़ा सा हमारे रिसर्च कॉलेज एकदम रिसर्च करके कि पहले भी ये ऐसे हुआ करता था, कि आज ये साधु आ रहे हैं, ये साधु पिछले 14 साल से भी आ रहे हैं, इन्होंने ये तपस्या की। तो ऐसे ऐसे करके यू कैन क्रिएट मल्टीपल सीरीज व्हेन इट कम्स टू दिस। तो कोशिश करेंगे हम लोग ऐसा बनाएं। और अपना जो मेन है, एक कंटेंट कैलेंडर प्लान करें कि आज के दिन हमारा, हम लोग इस थीम पे काम करने वाले हैं, कल हम इस थीम पे करने वाले हैं। तो आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट, है ना। आप लोगों की थीम्स डिसाइडेड होंगी तो आप उनसे एक बार मतलब कि पूछिए कि व्हाट ऑल थीम्स आर देयर, तो उसका एक कंटेंट कैलेंडर आप प्लान कर लो कि ऐसे 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 ये चीज है हमारी, एंड इस दिन हम ये करेंगे। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपकी कोई थीम है मानो डिसाइडेड, तो सुबह यू आर पोस्टिंग एन इन्फोग्राफिक्स ऑन दिस, दिन में यू आर पोस्टिंग सम वीडियो ऑन दैट, एंड शाम को यू माइट पोस्ट अ इंटरव्यू रिलेटेड टू दैट। तो ऐसा आप लोग कर लो, आई थिंक दैट विल डू द जॉब। एंड जब आप लोग, आप मतलब सभी लोग अगर ऑन ग्राउंड भी जाओ तो एवरीबडी शुड क्रिएट अ वीडियो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटर्न हूँ शोध की, तो आई वुड रादर क्रिएट अ मिनी व्लॉग कि शोध इंटर्नशिप से आई हैव कम हियर एंड व्हाट ऑल डिड आई डू, मतलब व्हाट ऑल डू आई डू एज अ शोध इंटर्न इन महाकुंभ। तो ऐसी ऐसी चीजें करके आप डाल सकते हो, क्योंकि वो चीजें ना मतलब इट विल बूस्ट योर अकाउंट ऑल्सो एंड इट विल बूस्ट शोध का अकाउंट ऑल्सो। तो नॉर्मल अपने अकाउंट से डाल के इन कोलैबोरेशन विद शोध, आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया फॉर एवरीबडी कि आज सुबह से शाम तक मैंने एज अ शोध इंटर्न क्या किया कुंभ में। तो यू थोड़ा सा आप लोग ऐसे उसको दिखाओ कि थोड़ा सा ना एवरीबडी इज रिसर्चिंग, देन समबडी इज प्लानिंग द कंटेंट, समबडी इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, समबडी इज टेकिंग इंटरव्यूज। तो ऐसे ऐसे करके आई थिंक एवरीबडी शुड मेक एटलीस्ट वन मिनी व्लॉग ऑफ दिस महाकुंभ यात्रा। बाकी तो आई थिंक दिस, अगर हम लोग इतना भी फॉलो कर लेते हैं तो द सोशल मीडिया थिंग वुड बी डन। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much, Prerna ji, for such an insightful talk. And yes, you have very well highlighted that we should record such events, and we should have a roadmap, a content calendar. And also, the idea of mini vlog is very interesting because everyone will be involved in that, and they will also learn the skills as well as, एक profile में रहेगा चीज कि yes, we have done this. And yes, the most important thing that you have said is कि politely we should take interview, we should take permission, and then we should record things, and we should also maintain our distance because nobody likes, to people too close. So yes, that politeness is very much important. And thank you so much, Prerna ji. Now I would like to invite our next eminent speaker, that is Mr. Priyank Dev ji, and he is a communications lead in Communication Youth for Sports Development and Peace. Priyank ji, the stage is all yours. नमस्ते सभी को, नमस्कारम। तो अभी प्रेरणा जी ने विस्तृत बताया सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि
शायद ये पहला ऐसा कुंभ का मेला है जिसमें सोशल मीडिया इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। तो हमें थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना ही चाहिए। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं शोध की, तो शोध का काम है रिसर्च करना, और दूसरा रिसर्च का डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत अहम रोल होता है। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं सब कहीं ना कहीं अपना शोध के माध्यम से ही जुड़े हैं। तो इस विषय का भी थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। और जब हम बात करेंगे कि कैसा ये दिखने वाला है, तो एक नज़ारा हम लोगों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आ ही रहा है, टीवी चैनल्स के माध्यम से आ रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे डिजिटलाइजेशन की, डिजिटलीकरण करने की, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो एक स्लाइड में अभी दिखा रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है क्या? Yes, sir, visible. हाँ, तो क्यों डिजिटल करना आवश्यक है, तो ये हमें दिख रहा होगा कि लगभग 650 मिलियन इंटरनेट यूजर जो है वो खाली इंडिया में है, जो कि चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। ऐसे 1.2 बिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं। ये डेटा 2023 का है, अपडेटेड डेटा है। और जो पहले अगर हम 3 साल पहले की बात करें तो इसमें अर्बन यूजर्स मतलब थोड़ा कम थे, अभी वो बढ़ करके 95 से 97 टू 98% हो चुके हैं। रूरल इंडिया में भी 120 टू 130 मिलियन यूजर्स हैं। तो एक समय में जब बात करते हैं कि कहा जाता था कि भारत में ग्रामीण परिवेश में कैसे डिजिटलाइजेशन होगा, डिजिटल इंडिया कैसे हो सकता है, तो उसका एक उदाहरण है कि अभी कैसे हो गया, जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो अभी हो चुका है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा था, आपको भी लग रहा होगा। सोशल मीडिया में पर मिनट क्या एक्टिविटीज होती है ये भी अपने सामने है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर मैं आता हूँ अपने मेन उस पे कि हमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली जब हम कोई भी इवेंट कवर करने जाते हैं तो उसका हमारे पास प्रूफ क्या है, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करके रखना। तो जब हम प्रयागराज में जाएंगे, हम में से लगभग सभी जानने वाले ही हैं, और वहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलेंगे, हम उनसे जानेंगे। जैसे अभी बताया भी कि कई सारे ऐसे साधु होंगे, सन्यासी, जो उनका कई सारे हो सकता है कि इससे पहले भी बहुत सारा वो उन्होंने कुंभ अटेंड किया होगा, जो अर्ध कुंभ होता है, चाहे जितने भी कुंभ हुए होंगे। तो उनका एक्सपीरियंस क्या था, पहले कैसे होता था, अभी वर्तमान में क्या डिफरेंस आया है, क्या इम्प्रूव हुआ है। एक संख्या बताई जा रही थी कि लगभग 35 से 40 करोड़ लोग इस कुंभ में आने वाले हैं, लेकिन ये डेटा हो सकता है कि बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन पुराने वाले कुंभ को ध्यान में रखते हुए ही किया गया होगा, प्रिडिक्ट किया गया होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जब वहां पे जा रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, वो या इधर हम वर्ड डॉक्यूमेंटेशन करें, दूसरा इंटरव्यू ले करके उसको अच्छे से शूट करना, और फिर उसको एक लाइब्रेरी बना करके हम रख सकते हैं कि कभी भी हमें दिखाना पड़े कि हाँ हमने कुंभ में ऐसा किया था, तो हमारे पास डेटा सर्च करने के लिए टाइम ना लगे हमें। दूसरी चीज कि कोई भी डेटा इजीली मिल जाता है जब हम डिजिटल फॉर्म में उसको रखते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है कि एक तो कॉपी पेन में बहुत लेंदी प्रोसेस होता है कि अगर हम कॉपी में या फिर किसी डायरी में मेंटेन कर रहे हैं, इन केस आप कुंभ में ही हैं, बारिश आ गई, पता चला कि आपकी कॉपी गीली हो गई, तो वो सारा डेटा, आपका जितना भी मेहनत है वो सब बेकार हो गया। या फिर कोई और भी कारण हो सकता है जिससे कि आपका डेटा डैमेज हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए भी ये डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। दूसरी चीज, इसको हम कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, अभी हमने देखा कि इंडिया में मोबाइल फोन यूजर्स कितने हैं, तो उन सभी लोगों के पास हम अपना इंफॉर्मेशन इजीली स्प्रेड कर सकते हैं अगर हमारे पास डिजिटल इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए भी ये हमें जरूरी इसकी महसूस होती है। आप अपने हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, कंप्यूटर में रख सकते हैं, मोबाइल में रख सकते हैं, या फिर क्लाउड बेस्ड सिस्टम, क्लाउड्स में हम अपलोड कर सकते हैं, तो उससे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति इजीली इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकता है हमारे डेटा को।
तो इसके साथ जब हम आगे और ध्यान देते हैं कि डिजिटल की अगर बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो कई स्टेशनरी लगते हैं, कई सारे लोग लगते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इजीली हमारा वॉर रूम रहेगा, जो भी सोशल मीडिया का रूम भी रहता है, वहाँ पे हमारे डेटा को कलेक्ट करके कस्टमाइज करके रखना, फोल्डर वाइज रखना कि हाँ डे 1 डे 2 कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा कैटेगरीज बना सकते हैं कि किसी में सन्यासी लोगों का ले लिए, साधु जो स्नान करने आए हैं। बाकी यूथ का हम कर सकते हैं, उनकी इंटरव्यू लेकर के कि यूथ के मन में क्या है इस कुंभ के बारे में। उसके अलावा महिलाएं, क्योंकि महिला सुरक्षा भी एक विषय है और वहां पे इतनी संख्या में आ रही है, उनको कोई समस्या हो रही है क्या, अगर हो रही है तो फिर हम उसको क्या निजात दिला सकते हैं, ऐसे सजेशंस के लिए। तो ये जब हम फ्यूचर में इस चीज को जब प्रेजेंट करते हैं, अपना पब्लिश करते हैं, तो वहां पे ये भी एक हमारे सामने रहेगा कि हाँ ये विषय था, हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और वो सारा डेटा ऑन रिकॉर्ड रहेगा, तो इजिली हम स्प्रेड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इससे हमारी काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। अगर हम डिजिटल फॉर्म की बात करें तो किसी काम को अगर मुझे नोट करने में 10 मिनट 15 मिनट लग रहा है, हो सकता है कि 2 से 3 मिनट में उसको मैं टाइप कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड के माध्यम से। तो इस चीज को रखना सिक्योरिटी पर्पज से भी ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम डिजिटल उसमें है इनक्रिप्टेड करके अगर डेटा को रखते हैं तो दूसरा कोई एक्सेस भी नहीं कर सकता है, या फिर हम इजिली किसी को देना भी चाह रहे हैं तो हम उसको सेंड कर सकते हैं इंक्रिप्शन की के साथ, तो वो भी कर सकते हैं। प्रोटेक्शन की बात करें तो हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो उसको हम हाइड करके रख सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमें यहाँ पे मिलता है डिजिटल वे में। अदरवाइज हम किसी लाइब्रेरी में रखते थे या फिर कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन करके तो एक जगह तो हम इजीली रख सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश वहां पे कुछ हुआ तो डेटा इरेज हो जाएगा। और डिजिटल फॉर्म में क्या होता है, हम एक ही डेटा को मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो हमारा फोन हो, हमारा कंप्यूटर हो, किसी क्लाउड बेस्ड सिस्टम में डाल दिए, चाहे कहीं और हम हार्ड ड्राइव में भी कॉपी करके रख सकते हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये भी हमारा रहता है, जो कि आने वाले समय में जब आप काम करोगे तो इसका हेल्प भी मिलेगा और इसी पर्पज से हम ये करने वाले भी हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इसके साथ ही हमें और क्या क्या, इनकेस हमारा डिजिटल फॉर्म में डेटा रहता है तो इसका रिकवरी करना हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि बहुत सारी जगह पे जब हम स्टोर करके रखते हैं तो एक जगह से इनकेस डिलीट भी हो गया, 2 जगह से डिलीट भी हो गया, तो बाकी जगह पे वो हमारे पास पड़ा रहता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जब आप जाएं वहां पे तो इस प्रोसेस को फॉलो करें कि हम अलग अलग पीसी में या फिर एक ही जगह पे, तो हम अलग अलग जगह पे डेटा को कॉपी करें, कैटेगरी वाइज करें कि हमें इंटरव्यू कहाँ पे स्टोर करके रखना है। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो हम न्यूज के माध्यम से भी देख रहे हैं कि कोई यूट्यूबर जा रहे हैं तो साधु बाबा अपने चिमटा उठा करके अटैक कर दे रहे हैं, मारने लग रहे हैं। तो हमें उनसे एक अनुयायी बन के उनसे मिलना है, अपना परिचय देना है, बताना है कि हमें हमारे अंदर जिज्ञासा है। कोशिश कर सकते हैं कि हम फोन और अपना कैमरा बंद करके जाएं, पहले उनसे बातचीत कर लें, उनसे बताएं कि हम ऐसे पीएचडी कर रहे हैं, हम रिसर्च स्कॉलर हैं, हम देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, बस यहाँ पे ये रिसर्च करने के लिए कि कैसा होता है, हमारे अंदर जिज्ञासा है कि हमें जानना है। जब ऐसे हम बात करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें वो लोग भी हेल्प करते हैं और करेंगे, फिर वो चीजें बताएंगे, कई सारी ऐसी भी चीजें बताएंगे जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी ना हो और हमें ध्यान भी ना हो। लगभग मैं देख रहा था 1,60,000 टेंट वहां पे लगाए हुए हैं। तो कहाँ पे क्या व्यवस्था है, उसके अलावा कितनी प्रजातियां हैं, मतलब प्रजातियां शब्द कहना अच्छा नहीं रहे, मतलब कितने प्रकार के अखाड़ा है, अलग अलग सबका क्या इम्पोर्टेंस है, सब क्या करते हैं, और सब अलग अलग मतलब समाज में भी रहते हैं तो अलग अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन कुंभ उनको कैसे कंबाइन कर रहा है, तो वो सारी हमें डिटेल्स मिलने वाली है उनसे। उसके साथ ही जब हम स्वयं भी वहां पे जाएंगे तो हमारा क्या है रहने वाला है, तो हम अपना भी एक एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हाँ हमने ये सोच करके इस इंटर्नशिप में भाग लिया था, हमारा पर्पस था कि हम वहां पे जाकर करेंगे, लेकिन हमारे जीवन में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जब हम वहां पे गए तो उससे क्या हमें अनुभव मिला है।
तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स अगर कवर करते हैं तो काफी अच्छा रहने वाला है। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो इसको अगर हम 7 से 8 पॉइंट में कवर करें तो पहला एक्सेसिबिलिटी। डिजिटल, मैं एक बार इसको करता हूँ कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का क्या अगर है, तो अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो पहला हो जाएगा कि एक्सेसिबिलिटी। कोई भी कहीं से भी बैठे हुए हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है, हमारी रिसर्च को पढ़ सकता है, इजीली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगा। दूसरी चीज सर्चेबिलिटी। अगर कोई स्पेसिफिक हमारा जैसे इवेंट का एक नाम भी हमने दिया हुआ है, यात्रा इंटर्नशिप, शोध यात्रा इंटर्नशिप, तो जो भी हैशटैग है उसके माध्यम से अगर हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो इससे इजीली लोग सर्च कर सकते हैं। सर्चेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो पर्टिकुलर हैशटैग डालेंगे तो उनसे इस विषय में जो भी डेटा चाहिए वो मिल जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक यूनिक हैशटैग जो कि हमारे हर पोस्ट में रहे, क्योंकि अगर हम डिजिटल की बात करें और सोशल मीडिया रह जाए तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो एक तरीके से हैशटैग भी एक डिजिटल लाइब्रेरी का ही काम करता है। किसी पर्टिकुलर हैशटैग को किसी एक पर्टिकुलर विषय के लिए ही तय किया जाता है, तो जब हम उसकी बात करते हैं, उससे रिलेटेड डेटा जब हम डालते हैं तो वो पर्टिकुलर हैशटैग के माध्यम से ही डालते हैं। तो इन केस मुझे 5 साल बाद अगर शोध यात्रा के बारे में पढ़ना हो, महाकुंभ का, तो जो भी हमारा डिसाइडेड होगा, अपनी टीम, शोध की टीम बताएगी कि कौन सा ऐसा हैशटैग डिसाइडेड हुआ है। तो अगर मैं 5 साल बाद भी चाहूँ कि इस इवेंट में क्या हुआ था, क्या डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, क्या चीजें हमने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया था, तो मैं सोशल मीडिया पे जस्ट जाऊंगा, ट्विटर पे जाऊंगा और वहां पे ये हैशटैग डालूंगा और पर्टिकुलर ये डेट सेलेक्ट कर लूंगा ट्विटर एडवांस सर्च में जाके। तो मुझे इस समय की सारी डेटा वहां पे एक लाइन से मिल जाएगी कि हाँ ये विषय शोध ने डाला था। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये हमारा जो सर्चेबिलिटी है हैशटैग के साथ वो काफी पुख्ता हो जाता है और वहां से हम कोई भी डेटा एक्सेस कर लेंगे। तो ये चीज, उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि हमारा स्टेशनरी का कॉस्ट बचा, कई सारे लोग लगते। तो इसमें ऐसे क्या रहता है कि अभी डॉक्यूमेंटेशन अगर करना है तो हम 2 से 3 लोग भी हैं, एक कैमरा पकड़ लिए, एक लोग ये कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, कुछ लोग क्वेश्चनर्स तैयार कर लिए। तो इस चीज को लेकर के तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें, और जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन होते थे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो सारे रिड्यूस होंगे। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा पॉइंट रहा कॉस्ट इफेक्टिवनेस के अगर माध्यम से देखा जाए। तो दूसरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट को लेकर के तो कागज जो है वो कहीं ना कहीं पेड़ से ही बनता है, तो उस चीज को हम कम कर रहे हैं। हमारे जो हम कहते हैं कि हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना है, तो हमारे काम में भी दिख रहा है कि हमने कागज को त्याग करके सारा चीज डिजिटली कर लिया। तो इस तरीके से एक हमारा हो सकता है ये रहेगा कि इको फ्रेंडली हम ये प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके साथ ही अगला पॉइंट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मैंने बताया, एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है। उसके अलावा स्केलेबिलिटी। तो हम इसमें स्मॉल या फिर लार्ज स्केल दोनों में ही हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट। उसके अलावा बैकअप एंड रिकवरी। हमारा कोई डेटा इन केस डिलीट भी हो गया तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई जगह पहले ही स्टोर करके रखा है। तो ये सारी चीजें हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाद में एक इंटीग्रेशन, अगर हम चाहते हैं तो अपना कोई एक इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक पोर्टल हो करके CRM, जो मतलब एक ही जगह पे चीजों को कंट्रोल करता है। एक पोर्टल बना लिया, वहां पे अलग अलग कैटेगरी हमने डिवाइड कर दिया, सारे अपने अपने इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं और वो डेटा सभी एक जगह जाके स्टोर हो रहा है। तो ऐसे हम सभी अलग अलग अपने विंग्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक ये पॉइंट, तो ऐसे अगर जब हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर होगा और साथ ही साथ ये सही वे में एक प्रेजेंटेशन भी तैयार होते जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम क्रिएटिव्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सबको प्रॉपर स्टोर करके रखने से ये हमारा रहने वाला है। तो इस चीज को मुझे लगता है कि आप लोग ध्यान देंगे। बाकी सोशल मीडिया के विषय अभी प्रेरणा जी ने बताया था, तो
जब हम सभी एक साथ मिल करके उसका काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जो व्यू है, जो हमारा ध्येय है, वो पूर्ण होने वाला है। हम दुनिया को सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये दिखाने वाले हैं, साथ ही एक हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे रहने वाला है। तो इस तरीके से मुझे लगता है। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो जैसा स्टार्टिंग में ही बताया गया था, आप लोग इसमें पूछ भी सकते हैं कि हाँ, जैसे प्रोसेस थे तो इसको कैसे करना है, या फिर कहीं पे इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो वो सारी चीजें आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना इंसाइटफुल टॉक सेशन के लिए। आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक्सेसिबिलिटी कितनी ज़रूरी है लोगों के लिए, कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं और हम उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो वो एक्सेसिबल भी हो अक्रॉस ग्लोब। और हैशटैग का रोल रहता है, हमने ये देखा है कि वो एक हैशटैग से पूरा सारा मैटर एक जगह स्टोर रहता है। व्हेनेवर वी सर्च वी गेट इट एट वन गो। एंड yes, it's very environmental friendly in documentation and एक्सेसिबिलिटी तो है ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वक्तव्य के लिए। मैं सभी इंटर्न से रिक्वेस्ट करूंगी, आपका सवाल आप टाइप कर दीजिए। धीरज जी, यू कैन टाइप द क्वेश्चन। ओके, एंड मीनवाइल सर मेरे भी कुछ, यस यस यस, ओके। हाँ, तो एक सवाल मेरे साइड से भी था प्रियांक सर, अगर आप उसका आंसर करेंगे, क्योंकि वो हेल्प हमें बहुत करेगा। कि अक्सर क्या होता है, व्हेन वी रिकॉर्ड थिंग्स, रॉ डेटा रहता है, जीबी बहुत रहता है फोन में जब वो रिकॉर्ड करते हैं, एंड एडिटिंग फिर हम फाइनली कहीं अपलोड करते हैं। तो जो ये स्टोरेज का इशू आ सकता है कहीं जाके, तो ये मैनेजमेंट हम कैसे करें? हाउ कैन वी मैनेज द स्टोरेज थिंग इन आवर डिवाइसेस, स्पेशली इसके लिए जी, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। ये हम सभी इनफैक्ट फेस करते हैं, मुझे भी करना पड़ता है ये कई बार। तो इसके लिए हम सारे डेटा क्लाउड पे अभी नहीं डालें, एक हार्ड ड्राइव हम ले लें अपना, 1 टीबी या 2 टीबी, हम कितने दिन रहने वाले हैं उसके हिसाब से कि हमारा कितना डेटा जनरेट हो रहा है, तो एक हार्ड डिस्क रखें हम, वहां पे स्टोर करके रखें। अगर हमारे लैपटॉप में उतने स्पेस है तो हम लैपटॉप में भी उसको रखें, और हार्ड डिस्क तो एक अपना सेपरेट हम रखें कि उसमें सारा रॉ डेटा आप डे वाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, या फिर टॉपिक वाइज। इससे क्या होगा कि जब उस डेटा को प्रोसेस करने जाएंगे तो हमारे ध्यान में रहेगा कि अच्छा, इस टॉपिक का ये डेटा है। और आप टॉपिक वाइज फोल्डर बनाइए, उसके अंदर डे भी लिखिए कि डे 1 डे 2, या फिर डेट डाल दीजिए प्रॉपर। तो इससे हमारे ध्यान में रहने वाला है कि क्या करेंगे। और प्रॉपर एक कोई डॉक्यूमेंटेशन करने वाला रहेगा तो ये भी बता सकते, उसमें ये भी लिख सकते हैं हम कि हाँ, ये वाली वीडियो है, इस टॉपिक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है जी जी। सर। सर एक सवाल चैट बॉक्स में भी है, एस शर्मा ये नाम मुझे दिख रहा है। उन्होंने बताया कि वो खुद भी ब्लॉगर है और कंटेंट क्रिएटर है। तो उनका सवाल ये है कि हम सिनेमेटोग्राफिक इफेक्ट कैसे डालें अपने वीडियोस में, सो दैट वी डोंट हैव टू एडिट इट मच। क्या आप कुछ इंस्टा या यूट्यूब पेजेस रिकमेंड कर सकते हैं जहां से हम कैमरा ट्रिक्स एंड इफेक्ट्स सीख सकते हैं? एक तो इंस्टाग्राम पे वो होता है बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम, ये डालेंगे ना जब आप गूगल में, तो उसमें दिखाएगा कि कैसे इंस्टाग्राम इफेक्टिव वे में हम ग्रो करते हैं। उसके लिए 2 से 3 घंटे की उसमें है वीडियो, जो देखना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। तो बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम, इस पे आप विजिट कीजिए और वो पूरा कोर्स कर लीजिए। तो उसमें दिखाएगा कि कैसे हम स्टार्टिंग से लेकर के ग्रो करते हैं, तो सारा प्रोसेस उसमें। दूसरी चीजें जो सिनेमेटोग्राफी का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जब हम शूट करते हैं, तो जैसे प्रेरणा जी ने बताया था कि शूट करते समय हाथ नहीं हिलना चाहिए, एकदम एस्थेटिक हो। या तो गिम्बल है, अगर आप ब्लॉगर हैं तो गिम्बल होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं भी है तो उसको थोड़ा सा हम शूट करते समय ध्यान रखें कि हमारा कैमरा ज्यादा हिले नहीं। अगर वो भी हो रहा है फिर भी, तो प्रीमियर प्रो में एक इफेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको यूज कर सकते हैं। स्टेबलाइजर करके इफेक्ट होता है प्रीमियर प्रो में, तो अगर थोड़ा बहुत हिल भी रहा है कैमरा तो उसको स्टेबलाइज कर देता है। आप वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करते होंगे। बाकी कलर ग्रेडिंग के लिए अभी बताया प्रेरणा जी ने, लाइट ग्रूम, ठीक है। और भी प्लगइन्स होते हैं प्रीमियर के, आप वो प्लगइन्स इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो
जी Okay, thank you, sir. Dheeraj ji, you can ask your question. Yes. Okay. उनका सवाल है, as suggested by Prerna ma'am, we should make a content calendar. So, wait a second. So this should be a separate one made by everyone for their selves, और पहले से ही show the official page का कोई content calendar बना हुआ है. So I think इसका आंसर ये हो सकता है कि आप ग्रुप में जाएंगे बैचेस में. So I think you should discuss and decide amongst your people जो बैच में जा रहे हैं, and जो लीड करेंगे या जो हमारे हेड हैं वो आपको बेहतर इसका बता सकते हैं. तो सोशल, एक मिनट में बोल देता हूँ. सोशल जी. मीडिया की जो टीम है, जैसे कुछ इंटर्न से इंटरव्यू के टाइम पे पूछा गया था कि आप सोशल मीडिया में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो जिन्होंने भी, आवाज आ रही है मेरी, तो जिन्होंने भी जो जी है जी वो आ उसके लिए बोला था कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको अलग से ग्रुप में ऐड किया जाएगा, थोड़ा सोशल मीडिया कोऑर्डिनेट करेंगे. तो आपकी अलग से मीटिंग होगी, और आपको ध्यान में ही है, थीम्स हमारे डिसाइडेड है, आपको पता है हम किस किस दिन फील्ड में रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से जो है वो कैलेंडर आपका बनेगा, वो अलग से मीटिंग में बनेगा, और वो आपके डिसीजन मेकिंग भी उसमें रहेगी. यू विल बी पार्टी टू दैट. जी. थैंक यू अर्जुन जी. ओके. मैम, आई हैव वन मोर क्वेश्चन. जी पूछिए. एक्चुअली जैसे अभी हमें बताया गया है कि इस पे और जैसे हमें पता भी था कि इस पे एक रिसर्च पेपर लिखा जाना है, सो विल वी बी इन्फॉर्म्ड कि हमें किस किस टॉपिक को कवर करना है फॉर द रिसर्च पेपर, क्योंकि थीसिस तो लिखा ही जाएगा इस पे. तो जो लोग ऑन फील्ड काम करेंगे, अगर उनको पहले से पता हो जाए कि कौन कौन से सब टॉपिक्स रहने वाले हैं इसमें, तो वी कैन फोकस मोर ऑन दैट, और उससे हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. जी, आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है आपको अभी सेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना, तो ठीक है. जी जी. थैंक यू सर. ओके धीरज जी, ठीक है. मेरा एक सवाल प्रेरणा जी के लिए ये है कि मैम, क्या अभी भी जैसे वी यूज टू सी द पैटर्न की ट्रेंडिंग म्यूजिक लगा के, ट्रेंडिंग म्यूजिक म्यूट करके फिर अपना ऐसा वीडियो, हमारे वीडियो का वॉइस आता है और ट्रेंडिंग म्यूजिक को लो कर देते हैं, ऐसा सिस्टम अभी भी फॉर सोशल मीडिया, डज इट वर्क फॉर इंस्टाग्राम एंड ऑल? Yes, it works. मतलब it's a very good technique to get your video under the trending song और खुद ही का गाना लगा के, तो it works. Also, what you can do is आप वीडियो पे ना कुछ keywords लिख दो और उसके बाद उसको एकदम छोटा करके साइड कर दो, तो that is also one way to get your video trending. ओके, थैंक यू सो मच मैम. और इंटर्न्स, आपके कोई सवाल हैं? प्लीज यूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस. You can raise your hand as well. You can unmute. Okay, गुनगुन मिश्रा जी ने पूछा है कि apps to edit videos so that quality doesn't degrade. अगर फोन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से VN ऐप है फोन का, और भी कुछ हो सकता है. बाकी प्रीमियर प्रो, इफ यूज लैपटॉप और पीसी, आप लोग ये कर सकते हैं प्रीमियर प्रो. बाकी मोबाइल के लिए और भी अच्छे अच्छे ऐप हो सकते हैं. VN बेसिकली कर सकते हैं, उसमें अच्छा हो रहता है. Okay. प्रेरणा जी, any suggestions? Any more suggestions? There's one more software जिसमें आपको बहुत सारे templates पे मिल जाते हैं, that is CapCut. तो आप CapCut भी यूज कर सकते हो. बाकी तो प्रियांक जी ने बता दिया है आपको. और in short भी if you want to use, you can use. But I think VN exports better quality videos. You can adjust the quality कि आपको HD में चाहिए, 1080 pixels में चाहिए, कैसे चाहिए, तो वो आप सब कुछ कर सकते हो उसमें. Okay, great. Thank you. Any more questions? You can raise your hand as well. And if there are no questions, we can move ahead. Okay, I think I should move ahead. कोई सवाल नहीं है? Sure, everyone? एक मैं बात बोलना चाहूंगा. जी अर्जुन. 19th को हमारा एक और सेशन होगा जो मेनली इस पे रहेगा कि जो टूल्स हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं. तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन वो रहेगा. कुछ लोग जो चिन्हित हैं कि जो सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट करेंगे, वो लोग तो उसमें जुड़ेंगे ही. आप में से भी यदि कोई ऐसा इंटरेस्टेड हो इंटर्न जो सीखना चाहता है ये चीजें, तो वो हमसे बात कर सकता है. इट विल बी एन इनफॉर्मल सेशन. उसका कहीं पोस्टर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उसमें हम देंगे इंटर्न्स को. तो आप में से कोई भी यदि रहेगा तो विशेष रूप से वो इंटर्न्स के लिए ही रहेगा.
तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम में किससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। Okay. Thank you, Arjun ji. And as I cannot see more questions, so I would like to invite Kritika ji. Kritika ji, for vote of thanks, and I would like to introduce Kritika ji. She is research scholar in English and Foreign Languages University, Hyderabad, and Kritika ji is national co-convener in Shodh. So Kritika ji, welcome. Okay, let us wait for a second. Meanwhile, I would also like to remind the interns कि you are having the session on 18th as well and 19th as well, जैसा अर्जुन जी ने बताया hands on training का. So rest assured कि अगर आपको थोड़ा भी technical 19-20 है, so don't be worried, you will be trained, and please use that practical skills well in your internship yatra. So don't be afraid of it as well. And ठीक है. आप, मेरी आवाज आ रही है? जी अर्जुन जी. आप सबको जो है ना आपके रिस्पेक्टिव बैचेस में भी ऐड कर दिया जाएगा। जिनको अभी तक कॉल्स नहीं आए उनके बैच इंचार्जेस से, उनको आज में आ ही जाएंगे कॉल्स। अगर आप में से किसी ने अंडरटेकिंग अब तक सबमिट नहीं किए हैं तो आप सबमिट कर दीजिए, तब तक आपको बैच ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो जिनका अंडरटेकिंग हो गया है उनको कर ही दिया है, जिनको कॉल्स नहीं आए उनको कॉल्स अभी आ जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, और कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप अपने बैच ग्रुप में सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पर्सनली भी किसी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी अर्जुन जी, thank you. Kritika ji, can you hear us? Yes, Himal ji, I can hear. Okay. I'll handle the stage to you for vote of thanks. Ji, namaste. Thank you so much. First of all, thank you so much, Priyank ji, Prerna ji, Arjun ji, Priyank ji and Prerna ji for having this session on social media. Okay, how to go ahead in this Shodhyata internship. How can we go ahead in this? And also, obviously, Arjun Bhaiya and everyone else who has participated. The Shodhyatris as well who are willing to participate in this, and they have participated in this meeting. Okay, I hope we are able to understand what is how the social media works and why is it important for everyone. As Priyank ji has already mentioned that it is not only cost effective, it's also environment friendly, and there are several other factors as well. So the social media presence is also one of the most important factors. Along with that, we'll be also having specific interns. The team will be contacting you, who will be in charge of social media for that particular batch. So I, on behalf of Shodh, thanks everyone for your support, and let's hope we can go ahead with this documentation of Prayagraj Mahakumbh. Dhanyavad. Thank you so much, Kritika ji. And at last, I would like to thank everyone for joining the training program. This program stands successful only due to your participation and enthusiasm. We are able to curate and bring the eminent speakers with us because of your interest and your participation. Now we will like to end this enlightening session. And as informed earlier, you will be having your training sessions ahead. So please be ready for that. And thank you so much, Prerna ji and Priyank ji, for your precious time and tips. I'm sure our interns will make the best use of your advice. Now, I again request the technical team to conclude this second session come orientation workshop with Kalyan Mantra. हाँ, बोलो मैडम।